Good evening, students. How are you all doing? I welcome you all to iExamB. So I am your host Anshuman. Let's get started with today's session. So today's session is based on vocabularies. So we will be saying 5 root words, okay, and the words based on them, okay. So first of all, let's just hear me, ठीक है? मुझे आप सुनिए. I watched a web series which was based on a lycanthrope. God is so clement because he has blessed us with all these online sessions. He has blessed you with good parents, right? And with this good day that we are all here to attend this live session, right? Okay, so if you notice, I used 2 words here, okay? And these 2 words were lycanthrope and clement, right? Now these 2 words are going to be used in this session, okay? तो ठीक है, शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले रूट वर्ड से, which is culp, right? C-U-L-P, okay? So culp, right? Now what is this root word? Okay, what does this root word mean? So it means fault, blame or guilt, ठीक है? So ये word आप जहां पर भी देखेंगे, so whatever word, okay, it consists of, right? So that is somewhere related to fault, blame or guilt. जहां पर भी आप word देखेंगे जिसमें से root word क्या है, culp, ठीक है? तो उन words का meaning कहीं ना कहीं relation रखता होगा fault से, blame से या guilt से, right? So the first word we see is culpability. Now what is the meaning of culpability? Okay, let's read it. First of all, now one more thing that you will notice is this. I have taken a word and I have taken its different forms, right? For example, when it is applicable in different contexts, right? Different parts of speech. So if you can see culpability, you will find that it is a noun here. फिर आप देखेंगे culpable, that's an adjective. Then culpably, that's an adverb, right? So I have, given the words like this, okay? Segregating them on the basis of parts of speech, right? Because what happens is this कि जब हम vocabularies learn करते हैं तो words तो हमें याद हो जाते हैं, but कहीं ना कहीं we are not able to use them or to apply them, right, within a sentence, and that problem arises how? Because of what? Because of the parts of speech, ठीक है? अगर हमने पढ़ा culpability is a noun, but then if we want to use it as what? Adjective, then how we are going to use it? तो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि ठीक है हमने 2 याद तो किया है वर्ड, बट वी आर नॉट एबल टू यूज इट. क्यों? क्योंकि एज एन एडजेक्टिव अगर वो यूज होगा तो उसमें कहीं ना कहीं एक मॉडिफिकेशन आप लाओगे जिससे आप उसे क्या बनाओगे, एडजेक्टिव. सो इफ इट हैज टू बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, you are not going to use culpability, you are going to use culpable, right? So we are going to see words like this, okay? ठीक है. So culpability, which is a noun, ठीक है? So it is a state of being responsible for some wrongdoing or fault, ठीक है? So culpability आप कब, जैसे कि आपने देखा रूट वर्ड में culp क्या है, fault, blame और guilt, ठीक है? So it means what? Fault, blame या guilt. जब आप किसी को responsible ठहराते हैं, ठीक है, या if you're guilty or someone else is guilty, या फिर किसी को आप blame करते हैं, right? Hello Aryan, how are you? Okay. So culpability, तो क्या होता है culpability? A state of being responsible for some wrongdoing or a fault, ठीक है? तो आप ये वर्ड आप तब यूज करेंगे जब क्या है, कोई एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसे स्टेट है, ओके, जब कोई रिस्पॉन्सिबल है किसी रॉन्ग डूइंग के लिए, किसी गलत काम के लिए, ठीक है? Okay, for example, I can say he was sentenced for 10 years, okay, because of his culpability. Yani because what he did, right, what he was responsible for, right, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो जो culpability थी, है ना, उसकी वजह से उसे 10 years का sentence उसे मिला, ठीक है? Now, the meaning of culpable. Now, please note down the parts of speech, okay? It is a noun. Now, we are going to move to adjective. So, culpable. Someone is something deserving blame, right? Now, culpability जो था एक situation, ठीक है, जहां पर कोई गलत कर रहा है,
कुछ काम गलत कर रहा है या किसी गलत काम में वो इंडल्ज है, तो कल्पेबल वो ही इंसान है जो कल्पेबिलिटी में क्या है, इंडल्ज्ड है। ओके, culpable is an adjective, so it can be someone or something, right? Anything that can be blamed, जिसे हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, ठीक है? Okay, who or which deserves blame, ठीक है? For example, he was culpable, right? He was culpable of his suicide या ऑफ दैट मर्डर, ठीक है, कि वो जो मर्डर था या जो भी सुसाइड था या फॉर वट एवर रीजन, ओके, वट एवर थिंग, ठीक है, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, दैट मीन्स ही वॉज कल्पेबल फॉर दैट रॉन्ग doing. Okay, now we move to culpably, that is an adverb, so a manner in which someone is responsible for wrong, ठीक है? तो culpably क्या है? culpably एक adverb है, ठीक है? ये सारे देखिए सेम वर्ड्स हैं, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस हो रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, है ना? सो culpably is a manner because we know that what are adverbs, right? Adverbs are the words which define a verb, right? An adjective or another adverbs. And adjectives define a noun, right? तो culpable वो इंसान था जो culpability में indulged है, तो हमने उसे adjective कहा। अब culpably क्या है? culpably एक काम है, ठीक है? ओके, एक ऐसा manner है जहां पर कोई responsible है किसी wrong doing के लिए, ठीक है? So that is culpably. Now culprit, so culprit आप देखेंगे इसके दो मतलब हो सकते हैं, ठीक है? It can mean two things. The first thing is someone responsible for a crime or a misdeed, and the second is the cause of a problem or any defect, right? Someone responsible for a crime or a misdeed. Now this word is very common, you might have heard certainly this word. So culprit is what? Culprit is a person who is responsible for something, right? For example, he is the culprit, right? He stole the money, right? And hence he is the culprit. तो एक ऐसा इंसान जिसको आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं किसी क्राइम के लिए या किसी बुरे बुरे कामों के लिए, ठीक है? Then it can also be a cause of a problem or any defect, right? यानी it cannot be necessarily just a person, एक इंसान, but ये क्या एक ऐसा रीजन भी हो सकता है, एक ऐसा कॉज हो सकता है जो क्या एक प्रॉब्लम का एक रीजन है। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से द कार्बन डाइऑक्साइड, गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आर द रियल कल्प्रिट्स, ओके, बिहाइंड व्हाट? बिहाइंड द ओजोन लेयर डिप्लेशन, यानी जो ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही है उसके पीछे कौन जिम्मेदार है या क्या जिम्मेदार है? ओके, गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, गैसेस लाइक मीथेन, सो व्हाट आई कैन से दैट दोज आर द कल्प्रिट, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल है। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इनमें से आपको ऑलरेडी कौन से वर्ड्स आपको आते हैं, ठीक है, या कौन से वर्ड्स आपने नए सीखे, ठीक है, और यहां पर जो भी वर्ड्स हैं आपको उनका लेवल क्या लगता है, ठीक है, कि क्या कितने ये डिफिकल्ट हैं या कितने ये इजी हैं? सो यू कैन प्लीज कमेंट डाउन, ठीक है? ओके, नाउ वी मूव टू वर्ब, ठीक है? अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, राइट? नाउ वी सी द वर्ब, ठीक है? हमने तो सीख दिया कल्पेबिलिटी इज अ नाउन, जब क्या है कैसा सिचुएशन व्हेन समवन इंडल्जेस इन अ रॉन्ग डूइंग, लेकिन जब कोई गलत कामों में इंडल्ज हो रहा होता है या वो रिस्पॉन्सिबल हम उसे ठहराते हैं, तो हम उसे क्या करेंगे, क्या कहेंगे हम उसे, है ना? सो inculpate, okay, see the verb to accuse or blame someone, ठीक है? to accuse or blame someone यानी किसी को जिम्मेदार ठहराना, किसी को blame करना, that is what? That is called inculpate, right? For example, he was inculpated of false wrongdoings, right? कि उससे जो false यानी जो गलत रॉन्ग डूइंग्स थी, ठीक है, उसको क्या किया गया? ही वॉज इनकल्पेटेड फॉर दैट, यानी उसको एक गलत केस में उसको जिम्मेदार ठहरा दिया गया जिसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी, ठीक है? सो इनकल्पेट, टू अक्यूज और ब्लेम समवन। सेकेंड मीनिंग can be incriminate, right? Now what is the meaning of incriminate now? Incriminate means to make someone responsible, right? But with an evidence, ठीक है? एविडेंस या एक प्रूफ को प्रोवाइड करके किसी को क्या करना? ब्लेम करना या रिस्पॉन्सिबल ठहराना, ठीक है? मूवीज में आपने बहुत देखा होगा कि क्या होता है, एक मूवीज में अगर किसी को फंसाना होता है तो वो क्या करता है? वो उसके रूम में छुप के क्या करेगा? रिवॉल्वर छुपा देगा, है ना?
आपने देखा होगा कि क्या जब पुलिस आती है, ठीक है, तो मर्डर तो कर दिया है ना, लेकिन वो क्या करेगा, जो रियल मर्डर है वो क्या करेगा, जो पिस्टल है वो किसी दूसरे के हाथ में वो थमा देगा। तो जैसे ही पुलिस आती है तो पुलिस जिसके हाथ में पिस्टल देखेगी वो उसको ही रिस्पॉन्सिबल ठहराएगी, राइट। सो that is called incriminate. When you, okay, place an evidence or place a proof, right, somewhere to inculpate someone, that is called what? Incriminate, right? For example, the police couldn't find anything at the home of the criminal to incriminate him. That means police जब the criminal के जब घर गई तो उसको incriminate करने के लिए, यानी एविडेंसेस फाइंड आउट करने के लिए, एंड देन उसको गिल्टी हेल्ड करने के लिए उनको कोई भी प्रूफ नहीं मिला। ओके, सो दिस इज इंक्रिमिनेट। नाउ वी मूव टू एक्सकल्पेट। नाउ सी द नोट द डिफरेंस। हेलो रितु कुमारी, हाउ आर यू? ओके, सो अरिहंत एंड रितु, ओके, यू कैन सर्टेनली कमेंट, ओके, दैट आप लोगों को इनमें से कौन से ऑलरेडी वर्ड्स आते हैं और कौन से वर्ड्स आप नए यहां पर सीख रहे हो, एंड यू कैन ऑल्सो टेल कि इसका लेवल क्या है, ठीक है, कितने आपको डिफिकल्ट लगता है या इजी लगता है। सो यू कैन श्योरली कमेंट डाउन, या अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। ओके, नाउ वी वर इनकल्पेट हमने देखा। नाउ सी द डिफरेंस इन एन एक्स, okay, antonyms, right? So inculpate, where inculpate means to accuse or blame someone. So where he exculpate means, okay, it's again a verb, so it means to let someone be free from an accusation or blame or declare so, ठीक है। जहां inculpate का मतलब होता है किसी को accuse करना, है ना, किसी को क्या accuse करना, guilty किसी को hold करना, so वही exculpate का मतलब होता है उसको उस गिल्ट से, उसको उस ब्लेम से आजाद करना है, राइट। टू लेट समवन बी फ्री फ्रॉम एन एक्यूजेशन और ब्लेम और डिक्लेयर सो, या टू डिक्लेयर दैट द पर्सन इज no more guilty or the person is no more to be blamed. For example, I can say the police held the innocent man, okay, or the police exculpated the innocent man from the false case. यानी एक ऐसा innocent आदमी था जिसको false case में जो फंसा हुआ था, तो पुलिस ने क्या किया, जब उसे evidences मिल गए तो पुलिस ने उसे exculpate किया। That means they let him be free, okay, from the accusation or blame जो उस पर लगा हुआ था। So inculpate and exculpate, very easy to remember, right? And there's nothing to get confused, right? Now we move to exculpatory. Now exculpatory is once again an adjective. So what it means free from guilt or alleged fault. देखिए ये वर्ड्स बने ही इन वर्ड से हैं, ठीक है, इट्स वेरी इजी। कल्प से बना है कल्पेटरी, कल्पेटरी से बना है कल्पेबल, कल्पेबल से बना है कल्पेबली, राइट। कल्प्रिट इज अ डिफरेंट वर्ड, ठीक है, बट मीनिंग वही है, ऑलमोस्ट सेम। नाउ इनकल्पेट, एक्सकल्पेट, मीनिंग ठीक है ऑलमोस्ट सेम, these are the antonyms, और exculpate से ही बना है आपका exculpatory, right? So something that's free from guilt or something that's free from the alleged fault, ठीक है, alleged fault का मतलब यानी किसी पर कोई एक fault किसी का बताया गया, किसी को एक जिम्मेदार किसी चीज के लिए ठहराया गया। So now that person is free from guilt, right? So that can be called an exculpatory, right? For example, an exculpatory criminal and exculpatory evidence, ठीक है, कैसा evidence जो क्या है किसी भी फॉल्ट से दूर है, ठीक है। सो आई होप यू वर ऑल एबल टू अंडरस्टैंड ये सारे वर्ड्स का मीनिंग। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट रूट वर्ड। नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यहां पर एक आपको वो वर्ड मिलेगा, ठीक है, जिसकी बात मैंने शुरुआत में की थी, ठीक है। Okay, so anthrop, okay, the second root word is anthrop, which means human. Now wherever you would find this word that's called anthrop, so it means what? It means human or something which is related to human. It can be human nature, it can be human qualities, human traits, right, human characteristics. It can be anything which is surrounded which surrounds the humans, right? So इंसान या इंसानियत, इंसान के नेचर, इंसान की क्वालिटीज, इंसान के गुण या कुछ भी जो इंसान से रिलेटेड है, सो वो होता है एंथ्रोप, ठीक है। तो इस पर बेस्ड हम वर्ड्स देखेंगे। द फर्स्ट इज एंथ्रोपोलॉजी, राइट। एंथ्रोपोलॉजी, व्हाट डज इट मीन? स्टडी ऑफ ह्यूमन ओरिजिन इन सोसाइटी, कल्चर, बिलीफ,
systems, etc. ठीक है. So anthropology actually I was also interested in anthropology few years ago. मुझे anthropology में interest था. ठीक है, मैंने कुछ documentaries देखी थी टीवी पर जहां पर which were based on anthropology. So उन documentaries में यही दिखाया जाता था, you know, people of different cultures, तो वहां की different stories, ठीक है, कैसे वो लोग अलग हैं हमसे, उनके cultures की क्या क्या different बातें हैं. ठीक है, तो ये सब आता है आपका एंथ्रोपोलॉजी में. तो जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया उनके बारे में, तब जाके मुझे पता चला था, हाँ, देयर इज अ कंप्लीट, ओके, अ सेपरेट एरिया ऑफ स्टडी दैट्स कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी, व्हिच इज डेडिकेटेड, राइट, specifically to study about humans. ठीक है, about humans what? Humans culture, right? Humans belief systems. ओके, इंसान कैसा सोचते हैं, कैसे वो ग्रुपिज्म करते हैं, कैसा उनका साइकोलॉजी चलता है, राइट, एंड कैसे वो कल्चर्स, कैसे वो अपने रिलीजन्स फॉर्म करते हैं, कैसे रिलीजन्स ह्यूमंस को इंपैक्ट करता है. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कहां पर पढ़ते हैं? एंथ्रोपोलॉजी में. ओके, एंड वन मोर थिंग, सो इट्स वेरी इजी. अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज, ओके, यू नो व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी, राइट? इट्स अ स्टडी ऑफ ह्यूमन ओरिजिन and society, culture, belief system, etc. Now what if I ask you ki what is what is a person who studies anthropology is called? ठीक है, तो एक इंसान जो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ता है या एंथ्रोपोलॉजी को प्रैक्टिस करता है, तो उस इंसान को हम क्या कहते हैं? What is that noun, what is that word used? आपको ये कमेंट में लिखना है. ठीक है, सो I'll be not telling it right now. ठीक है, पहले मैं आप लोगों का कमेंट चेक करूंगा. सो जिसको भी आता है प्लीज क्या करिए, ठीक है, आप कमेंट में लिखिए कि क्या हम उसे कहते हैं. अ पर्सन हु स्टडीज और प्रैक्टिसेस एंथ्रोपोलॉजी. इट्स वेरी इजी, राइट? तो तब तक हम बाकी करते हैं. ओके, सो द सेकंड इज एंथ्रोपॉइड. नाउ एंथ्रोपॉइड कैन बी सी, इट कैन बी अ नाउन and it can be an adjective, right? So anthropoid, adjective, resembling a human being in form or structure. ठीक है, when I was a child, okay, when I was a child, so I saw an anthropoid shade, right, or an anthropoid shadow. ठीक है, जब मैं छोटा था तो शायद दिवाली का टाइम था, तो मैंने क्या देखा, एक अंधेरे जगह में I went, so उस अंधेरी जगह में मैंने क्या देखा कि there was someone standing, और वो क्या था, वो इंसान की तरह लग रहा था. I didn't see that person, but I saw a shadow. मैंने एक छाया देखी जो इंसान के फॉर्म में थी. Now I don't know what was it. ठीक है, तो कई सारे एक्सपीरियंसेस लोगों को होते हैं, उसमें से मैं इस एक्सपीरियंस को लेकर, मतलब I count this experience. ठीक है, it can be anything, right? But I'm using this example to explain that what anthropoid can be, right? एक कोई भी ऐसी चीज जो क्या इंसान के स्ट्रक्चर से रिलेट करती है, right? It resembles to a human being in form or structure. जो what do you mean by human being? ठीक है, human structure, ठीक है, 2 हाथ 2 पैर, है ना, ऊपर से शेप में. ठीक है, तो ऐसी कोई चीज जो क्या इंसान के स्ट्रक्चर या उसके फॉर्म से रिजेंबल करती हो, वी कैन कॉल दैट एंथ्रोपॉइड. ओके, नाउ or if we talk about nouns, so what it means, primates like apes. ठीक है, आप बायोलॉजी में अगर पढ़ेंगे, so animals like mammals like monkeys, chimpanzees, so इस तरह के जो हायर क्लास में जो एनिमल्स आते हैं, तो उन्हें हम एंथ्रोपॉइड भी कहते हैं. ठीक है, इफ यू हैव रेड बायोलॉजी इन योर लाइक स्कूल, तो आपने देखा होगा जरूर, जब आपने प्लांट्स या एनिमल्स पर बेस्ड आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, वो भी क्लासेस में क्या है, they are categorized, right, like higher ranking animals or higher class animals than lower animals, like this. So जो higher class के जो mammals होते हैं, जैसे chimpanzees हो गया, ठीक है, monkeys हो गए, तो ये सारे apes है ना, तो these are called anthropoid as well. Now these are the nouns, ठीक है, but when you use them as an adjective, एक कुछ ऐसी चीज को दिखाने के लिए जो क्या है, एक इंसान के स्ट्रक्चर या फॉर्म से रिलेट करती है, then it is called anthropoid. In that case, it is an adjective, not a noun. Now, anthropoglot. Now, what is the meaning of anthropoglot? Anthropoglot is a noun here. So, an animal whose tongue resembles to that of a human, allowing to speak almost like a human. So, एक ऐसा जानवर है ना, या एक पक्षी है ना, when I say animal, so that includes both, right, animals and birds. तो एक ऐसा एनिमल, एक ऐसा पक्षी जो क्या है, जिसका जो टंग है, जो जीभ है,
वो कैसे रिजेंबल करता है, वो एकदम या वेरी क्लोज वो किसके तरह रहता है, जैसे इंसानों का टंग होता है। सो ठीक है, सो इंसानों की जो जीभ होती है तो वैसे ही कुछ एनिमल्स की जीभ होती है जो उनको क्या करता है, जो उनको हेल्प करता है टू स्पीक लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ ह्यूमन। सो कैन यू गिव मी एन एग्जांपल कि ऐसा कौन सा एक जानवर है या पक्षी है, ठीक है, जो कि इंसानों की तरह, ठीक है, बात कर सकता है बिकॉज इट हैज a tongue which resembles to human beings. Hi Ashwin, yes Ashwin and Sushil, तो क्या बताना चाहेंगे, जो क्वेश्चन अभी हमने पूछा, ठीक है, when we talk about anthropoglot, right, तो ऐसा एनिमल, ठीक है, जिसका जो टंग है वो रिजेंबल करता है ह्यूमन से, which facilitates it to speak like a human, ठीक है। और आपको इसका भी बताना कि what is a person called who studies anthropology or who practices anthropology, okay। Now misanthrope, now we come to the other word, misanthrope. So misanthrope is a noun and you will see a different word that's called misanthropic, so don't get confused, just the parts of speech change. Misanthrope is a noun and misanthropic would be an adjective. So misanthrope, a person who abhors humankind and tends to avoid the human society. Abhors, ठीक है, vocabulary अपनी enrich कर लीजिए। Abhors means what? Abhors means to hate, to dislike, right? इसका एक और synonym हमारे पास है which is called antipathy, right? So this is abhor, abhor, to dislike, right? So a person who abhors humankind and tend to avoid the human society, एक ऐसा इंसान जो खुद इंसानियत से या इंसानों से क्या करता है, नफरत करता है या उनको डिसलाइक करता है, ठीक है। So that person is known as misanthrope, right? So a person who abhors humankind and tends to avoid the human society. आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोगों को जो because of bad experiences क्या होता है, because they have experienced some bad things with other human beings, so out of that what happens, उनको इंसानों से ही नफरत होने लग जाती है ना। या आप लोगों ने कई देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं who call themselves animals lover, ठीक है, तो वो उनको मतलब कहीं ना कहीं ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है जहां पर क्या होता है, उनका जो प्यार है, ठीक है, वो एनिमल्स के लिए ज्यादा हो जाता है rather than the human beings, right? So those people would be known as misanthrope, ठीक है, people who tend to avoid the human society, right, or the humankind, right, and somewhere their inclination goes towards the the nature, right, or animals or other creation of the universe, right? Now this was your noun, ये आपका क्या था, एक noun था। अब हम आते हैं एडजेक्टिव पर, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना है। दिस वाज मिसंथ्रोप एंड नाउ इट बिकम्स योर मिसंथ्रोपिक, राइट? सो हैविंग एंटिपैथी टुवर्ड्स ह्यूमनकाइंड, सी वी जस्ट सॉ दिस वर्ड, राइट, एंटिपैथी, व्हिच आई टोल्ड यू दैट इट इज अ सिनोनिम ऑफ अबोर। तो हमने देखा अबोर, एंटिपैथी, इवन लोथ, ठीक है। सो दीज आर व्हाट, these synonyms. So having antipathy towards humankind, so a person, ठीक है, what I can say, he didn't help, ठीक है, he didn't help that person because he was misanthropic. उसने उसकी मदद इसलिए नहीं की थी, क्यों? क्योंकि वो misanthropic था, ठीक है। तो because he hates human beings or he dislikes human beings, इसलिए जब उसने देखा कि एक दूसरा इंसान क्या है, मदद की जरूरत में है, तो उसने उसे हेल्प नहीं किया because he was misanthropic, right? Now we move to the antonym. Now please note, ठीक है, यहीं से आप थोड़े बहुत सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी सीख लीजिए। जहां पर मिसंथ्रोपिक इज अ पर्सन हु होल्ड्स एंटिपैथी टुवर्ड्स ह्यूमनकाइंड, वही philanthropist is the what? The antonym. So philanthropist, a person engaged in welfare of others or society, usually by generous monetary donations, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो सोसाइटी के क्या करता है, सोसाइटी के वेलफेयर में वो सोचता है, वेलफेयर में वो काम करता है, बाय व्हाट, बाय यूजुअली मॉनेटरी डोनेशंस, ठीक है। सो किसी ने मुझे एक एग्जांपल भी दिया था, जैसे क्या है, रतन टाटा जी है ना। सो एंड देयर आर मेनी affluent people, and what do I mean by affluent? Affluent means who are very wealthy, right, very rich. So what do? They give their certain part of their income in donation, ठीक है। So monetary donation or fiscal donation, okay, the word fiscal, it is also synonym to monetary, something related with money, ठीक है। So ऐसे लोग जो सोसाइटी का भला चाहते हैं, ठीक है, उसके वेलफेयर में काम करते हैं, usually by what? Usually by the monetary donations, ठीक है। So वो क्या है, उन्हें हम कहते हैं philanthropist, okay? All right.
ठीक है, तो अभी हम पहले आते हैं, मुझे कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं, तो हम इस पर आ जाते हैं। जो दो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को पूछे थे। सो एंथ्रोपोलॉजी, सो पर्सन हु स्टडीज एंथ्रोपोलॉजी और प्रैक्टिसेस एंथ्रोपोलॉजी, दैट obviously it is called what? Anthropologist, right? So anthro, that means human, and then logy, anthrop, okay, human, and then logy. Logy means what? Study, right? For example, biology, right? Then graphology, then anthropology, right? Psychology. So these are all, ठीक है, जो क्या है, मिक्सचर, एक लॉजी जो शब्द है उससे मिलकर ये बना है। तो ऑब्वियसली लॉजी अगर स्टडी है, सो पर्सन हु स्टडीज, ओके, सो दैट इज कॉल्ड लॉजिस्ट। आपका साइकोलॉजिस्ट हो गया, है ना, सो आर्कियोलॉजिस्ट, इस तरीके से। सो अगर आपको इसका एडजेक्टिव एक नाउन बनाना है, ठीक है, पर्सन हु प्रैक्टिसेस, सो जस्ट कन्वर्ट इनटू लॉजिस्ट, राइट? सो एंथ्रोपोलॉजिस्ट। देन वन मोर थिंग आई हैड आस्क्ड कि एग्जांपल क्या हो सकता है कि एंथ्रोपोग्लुट का, ठीक है, an animal whose tongue resembles to that of human being, right? So that is what a parrot, है ना, एक तोता, एक पैरट बोलता है ना इंसानों की तरह। और ऐसे कुछ अदर पैरट्स, अदर बर्ड्स भी होते हैं जो क्या, who have the capability to speak like human beings, ठीक है। So because they resemble, उनका जो टंग का स्ट्रक्चर है, somewhere it's like close to human beings, that's why they can speak. So those are called the anthropoglotte, okay? Let's continue, ठीक है। Anthropocentric. Now we have the another word which is called anthropocentric. So again, this is an adjective here. So what does it mean? Something where the central concept as the crucial element of existence is humankind or the human nature as opposed to God or animals. Okay, so anthropocentric is something जिसका जो main central जो idea है, it revolves around what? It revolves around the humankind. Alright, or the existence of humankind, ठीक है। So जहां पर एंथ्रोपोसेंट्रिक की अगर मैं बात करूं तो उसका जो थीम होगा, ठीक है, या जो उसका एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट, कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, कि ह्यूमन कहां से आया, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ठीक है, by what the human being is composed of, ठीक है, किस एलिमेंट से ह्यूमन बीइंग्स बना, what is the future of human beings, what human beings have done, इंसानों ने अभी तक क्या क्या किया, ठीक है। और उसमें गॉड्स और एनिमल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा क्या अलग हो जाता है, ठीक है, स्किप हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज एंथ्रोपोसेंट्रिक। For example, if I can say, तो Buddhism, right? The Buddhist ideology or the Buddha concept, right? So that is what, that is anthropocentric, ठीक है। So उसमें हम यही पढ़ते हैं कि concepts like these, कि how the human beings, how their own karmas or how their own whatever they do, that affect them, and how they can ultimately reach to moksha or salvation by their own karma, ठीक है। तो उसमें गॉड का या एनिमल का इस तरह का कॉन्सेप्ट एक नहीं रहता है। वहां पर हम ज्यादातर क्या करते हैं, जो इंसानों का जो एक एग्जिस्टेंस है, ठीक है, what they do and what they don't do, okay, उसके अराउंड ये क्या रिवॉल्व करता है। So that is what, that is anthropocentric. Now we move to another. Now see, यहां पर जहां पर ये एडजेक्टिव था वहीं हम नाउन पे आ जाते हैं। That is called what? That is called anthropomorphism, ठीक है। Anthropomorphism, which means attributing human qualities or characteristics to God or an animal. तो जब एक डीटी को, ओके, किसी एक गॉड को या किसी एक जानवर को हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूट, उसको क्वालिटीज करते हैं, किसकी, इंसानों की, ठीक है, उसको हम ह्यूमन ट्रेट्स या ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स से उसको समझाने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज नोन एज एंथ्रोमॉर्फिज्म, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल दी व्हाट वी कैन से, लाइक जो एनिमल्स हैं, दे गेट जेलस, राइट, और दे वांट टू डिफेंड देमसेल्फ। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, व्हाट डू दे ये जो इंसानों में ज्यादा ये होते हैं ना, दी टेंडेंसी टू डिफेंड oneself, the tendency to what, be jealous of others, ठीक है। तो this can be called anthropomorphism. Now anthropomorphic again क्या है, एक एडजेक्टिव है ना, characterized by anthropomorphism, ठीक है। सो जो भी whatever thing, जो भी क्या है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म से सब्जेक्टेड है या कैरेक्टराइज्ड है, दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोमॉर्फिक। सो एनीथिंग, ओके, जब क्या होता है वो रिलेट होता है, ठीक है, ह्यूमन क्वालिटीज से, ठीक है, then that is called anthropomorphic. Now lycanthropy, so if you remember in the beginning of my video I used a word that's called lycanthrope, ठीक है। so जिस पर मैंने एक वेब सीरीज देखी थी, मैंने आपको बताया, ठीक है। so
लाइकेंथ्रोप क्या होता है? एक ऐसा इंसान, आपने लेजेंड्स भी सुने होंगे, जो क्या होता है कि उसके पास एक टेंडेंसी होती है, उसके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि ही कैन ट्रांसफॉर्म इनटू अ वेयरवुल्फ, ठीक है, जो एक भेड़िए में बदल सकता है, ठीक है। आपने देखी होंगी काफी ऐसे इंडियन भी सीरियल्स ऐसे आते हैं, ठीक है, जिसमें से क्या वो क्या करते हैं, उनके पास एक पावर होती है, जैसे अमावस्या के दिन या फुल मून की नाइट को वो क्या पूरे वुल्फ में, एक भेड़िए में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो या तो वो पूरे भेड़िए में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर क्या वो आधा इंसान और आधा भेड़िए में वो कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इसका आपने एग्जांपल इसका देखा होगा एक फ्यू पॉपुलर मूवीज में, जैसे नार्निया, राइट। सो मिस्टर ट्यूबलेस आई थिंक उनका नाम है, कैरेक्टर उसमें, तो उसमें क्या है, ऊपर से तो ही इज इंसान है ना, ऊपर से इज अ ह्यूमन बीइंग, कान उनके वोल्फ की तरह रहते हैं और उनके जो पैर हैं वो भी वोल्फ की तरह रहते हैं, ठीक है। अनदर ट्वाइलाइट मूवी में आपने देखा होगा, ठीक है। सो उसमें देयर इज अ ट्राइब, ठीक है, जो क्या था, नेचुरली दे आर ह्यूमन बीइंग्स, बट आल्सो दे आर वोल्व्स, दे हैव द the tendency or the capability to turn into wolf, ठीक है। तो ये होते हैं आपका, these are your lycanthrope, ठीक है। so lycanthrope person who can transform into a wolf, जिसे हम werewolf भी कहते हैं और wolfman भी कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। सो वही lycanthropy क्या है, a mythical transformation of a human into a wolf or form of a wolf, ठीक है। सो lycanthropy is your ability, या एक ये काफी पॉपुलर लेजेंड है, ठीक है, जहां पर, ठीक है, वो लाइकेंथ्रोपी है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन, एक मिथिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब ऐसा सच में नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वैम्पायर्स, ड्रैकुलास, तो दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर ऑल द मिथिकल कॉन्सेप्ट्स है ना, स्टोरीज हैं, बस लेजेंड्स हैं, दीज आर नॉट रियल, ठीक है। ये आपके ज़ॉम्बीज भी हो गए, ठीक है। सो वैसे ही एक मिथिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, और जो इंसान लाइकेंथ्रोपी करता है या जिसमें लाइकेंथ्रोपी की कैपेबिलिटी है, दैट पर्सन इज कॉल्ड लाइकेंथ्रोप, ओके। So let's move to another root word that's called arbiter, ठीक है। So this means think or judge, ठीक है। So arbiter, ठीक है, तो यहां पर जो भी रूट वर्ड आप जिस भी वर्ड में यहां पर देखेंगे, ठीक है, तो उसका मतलब होता है क्या, that means think or to judge, that somewhere relates to think or judge. Now arbitrary is an adjective, okay, which means based on random choice without any plan or organized system, ठीक है। आर्बिट्ररी, ठीक है, दैट मीन्स कोई भी एक रैंडम चॉइस, ठीक है, जहां पर एक प्रॉपर प्लान जो नहीं बना है या जो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज सिस्टम जहां पर नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आपकी जो चॉइस होती है वो बस रैंडमली बन जाती है, ठीक है। सो दैट इज आर्बिट्ररी। आपने साइंस में आपने एक टर्म सुना होगा विच इज नोन एज आर्बिट्ररी जीरो, ठीक है। तो वो जीरो क्या होता है, जिस चीज की वैल्यू अगर जीरो नहीं होती है तो हम उसे मान देते हैं कि हाँ ये क्या है, ये जीरो है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द आर्बिट्ररी, राइट, समथिंग जो क्या है विच इज बेस्ड ऑन द रैंडम चॉइस, ठीक है, बिना किसी ऑर्गेनाइज सिस्टम के या बिना किसी ऑर्गेनाइज प्लान के। नाउ आर्बिट्रेशन, नाउ व्हाट इज आर्बिट्रेशन, प्लीज नोट दिस बिकॉज इस पर ही जो वर्ड्स होंगे वो आगे आएंगे, ठीक है, डिफरेंट एडजेक्टिव्स, नाउन्स एटसेट्रा, ठीक है। सो आर्बिट्रेशन इट्स अ प्रोसीजर थ्रू व्हिच डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड बाय आर्बिट्रेटर्स। डिस्प्यूट्स क्या होती हैं, डिस्प्यूट्स आर प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, काफी जो लंबे टाइम से, लंबे समय से जो लड़ाइयां या झगड़े जो चलते हैं, दोज आर नोन एज डिस्प्यूट्स। नाउ arbitration is a procedure through which disputes are settled by arbitrators, ठीक है। अच्छा, for your ease, let's talk about arbitrators first, ठीक है। पहले हम arbitrators के बारे में बात कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। arbitrators, देखिए, an independent person or body officially appointed to settle a dispute, यानी आर्बिट्रेटर्स क्या होता है, एक ऑफिशियली, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट और ऑफिशियल ये बॉडी होती है, या तो ग्रुप होगा कुछ लोगों का या एक सिंगल पर्सन होगा जो क्या करता है, जो डिस्प्यूट्स को सेटल करता है, यानी जो झगड़े होते हैं, ठीक है, या केसेस होते हैं, उनको वो क्या करता है, सेटल करता है, उनमें कुछ वो डिसीजंस लाते हैं जिससे जो डिस्प्यूट्स हैं वो सेटल हो जाएं, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड आर्बिट्रेटर। नाउ अब समझ में आ गया आपको आर्बिट्रेटर क्या है। फॉर एग्जांपल दैट 10 decade प्रॉब्लम, ओके, वाज सॉल्व्ड बाय आर्बिट्रेटर, ठीक है, यानी वो जो 10 दशकों से जो चल रही जो एक लंबी प्रॉब्लम थी, है ना,
वो क्या हुआ, आर्बिट्रेटर ने उसे क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, ठीक है। सो दिस इज आर्बिट्रेटर। नाउ यू हैव अंडरस्टूड, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि आर्बिट्रेशन अब क्या है, प्रोसीजर थ्रू व्हिच डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड बाय आर्बिट्रेटर्स। सो आर्बिट्रेटर्स यानी वो लोग, वो इंडिपेंडेंट बॉडी और वो ऑफिशियली इलेक्टेड बॉडी जो क्या डिस्प्यूट्स को यानी लड़ाई झगड़ों को क्या करती है, सॉल्व करती है, सेटल करती है। तो ऐसे लोग जिस प्रोसीजर के थ्रू, ठीक है, वो सेटल करते हैं डिस्प्यूट्स, दैट इज कॉल्ड एज आर्बिट्रेशन, ठीक है। सो आर्बिट्रेशन, फॉर एग्जांपल दिस डिस्प्यूट सीम्स टू बी वेरी रफ, okay, and it has to go under arbitration। अगर मैं इस एग्जांपल का यूज करूं तो which means what, कि ये जो प्रॉब्लम है ये काफी हार्श लगती है, काफी ज्यादा बुरी लगती है या स्ट्रॉन्ग लगती है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे ही सॉल्व नहीं होगी, इसको आर्बिट्रेशन के थ्रू इसको जाना पड़ेगा। यानी क्या, एक फॉर्मल प्रोसीजर से जहां पर आर्बिट्रेटर्स क्या करेंगे, उस डिस्प्यूट को वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो इट इज अ प्रोसीजर। नाउ arbiter, a person who solves disputes and has authority in a matter, ठीक है। अब देखिए आर्बिटर एंड आर्बिट्रेटर आपको दोनों सेम लगेंगे। आर्बिटर क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है और जिसके पास अथॉरिटी होती है किसी भी मैटर में, उस डिस्प्यूट के मैटर में, ठीक है। तो देखिए दोनों सेम है, बट व्हाट इज द डिफरेंस, कि जो आपका आर्बिट्रेटर है वो थोड़ा सा फॉर्मल है, ठीक है। यहां पर देखिए ऑफिशियली अपॉइंटेड की बात मैंने की है, सो इट कैन बी रिलेटेड टू अ जज, अ पैनल ऑफ जजेस, राइट, एक ज्यूरी या एक एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, इस तरह के लोग हो सकते हैं। बट आर्बिटर कैन बी एनीबॉडी, राइट, जो उतना फॉर्मल नहीं है, ठीक है, जो क्या है, इट कैन बी योर एनी फैमिली मेंबर एज वेल, ठीक है, जो एक हेड है जहां पर उनको अथॉरिटी रहती है उस matter में, right? So what do? They can solve that problem, they can settle that dispute. So this is arbiter and arbitrator, okay? Now ठीक है, let's move to new words now. Arbitrable. Now arbitrable means what? Subject to decision by arbitration, ठीक है। I can say कि this dispute is arbitrable. So जब मैं कहता हूं तो it means कि ये जो dispute है it is subject to decision by arbitration. That means ये जो प्रॉब्लम है, ये जो डिस्प्यूट है, ठीक है, ये ऐसे ही नहीं सॉल्व हो सकता है, इट इज आर्बिट्रेबल। दैट मींस इसको आर्बिट्रेशन के अंडर इसको जाना पड़ेगा, तब जाके ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होगी, राइट। सो सब्जेक्ट टू डिसीजन बाय आर्बिट्रेशन मींस जो आर्बिट्रेशन से क्या होती है, अफेक्ट होती है, ठीक है। सो दैट इज आर्बिट्रेबल, राइट। नाउ arbitrament, settling of a dispute through arbitration by arbitrators. See, do not get confused by all these similar words, ठीक है। ये जो यहां पर मैंने arbitration, arbitrators, then arbitrament, ठीक है, ये जो मैंने एक सेंटेंस में इन तीन वर्ड्स का मैंने यूज किया है, इट्स फॉर यू ओनली, ताकि आपको क्लैरिफिकेशन हो। आर्बिट्रेमेंट क्या होता है, देखिए आर्बिट्रेटर्स आपको पता है, अभी हमने देखा, एन ऑफिशियली अपॉइंटेड बॉडी जो क्या करती है, डिस्प्यूट्स को सेटल करती है। आर्बिट्रेशन आपको पता है, वो आर्बिट्रेटर्स जिस प्रोसीजर के थ्रू उसको सेटल करते हैं, दैट इज नोन एज आर्बिट्रेशन। नाउ सेटलिंग ऑफ अ डिस्प्यूट थ्रू आर्बिट्रेशन बाय आर्बिट्रेटर्स, आर्बिट्रेटर्स जब क्या करते हैं, आर्बिट्रेशन के थ्रू वो एक डिस्प्यूट को सेटल करते हैं, तो दैट इज नोन एज आर्बिट्रेमेंट, ठीक है। सो आर्बिट्रेशन के थ्रू जब एक प्रॉब्लम सेटल हो गई तो बस उसको हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं आर्बिट्रेमेंट, ठीक है। नाउ आर्बिट्रेरली, अब बस यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने एडवर्ब बना दिया, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अ रैंडम चॉइस ऑटोक्रेटिकली, ये पहले वाला जो हमने देखा है ना, arbitrary, ठीक है, so it is related to this. So arbitrarily, ठीक है, for example the samples were chosen arbitrarily, यानी suppose मैं एक रिसर्च कर रहा हूं तो उसमें मुझे सैंपल्स चाहिए, तो सैंपल्स कलेक्ट करने के डिफरेंट नॉर्म्स होते हैं ना, कि जेंडर होता है आपको मेल्स के या फीमेल्स के, आप फीमेल्स लोगों को आपको सैंपल्स कलेक्ट करने उनसे, या एज का नॉर्म होगा कि 18 to 24, या टीनेजर्स के या अडल्ट्स के आपको कलेक्ट करना है, ठीक है, या कल्चर्स पर डिपेंड होगा, या रिलीजन पर बेस्ड होगा, या एक पर्टिकुलर रीजन लोकेलिटी पर बेस्ड होगा। लेकिन व्हेन आई से कि आर्बिट्ररली द सैंपल्स वर कलेक्टेड आर्बिट्ररली, दैट मींस व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ अ रैंडम चॉइस। दैट मींस एक ऑर्गेनाइज प्लान, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं था कि मुझे किस तरीके से सैंपल चूज करने थे, मैंने बस क्या कर दिया, रेंडमली मैंने
चूज किया, रेंडमली मैंने एक चॉइस की, ठीक है, so that's called arbitrarily. Arbitrarily is also known as autocratically, एक इसका सिनोनिम हो सकता है, ठीक है। autocratically क्या है? autocratically is when someone is not affected by the authority or the law, right? So when someone is not affected, okay, by the power that the authority has, right? तो authoritative and autocratic, ठीक है, ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, ठीक है। so autocratic is that. now arbitrariness नाउन है a state of being based on a random choice, ठीक है। अब जहां पर हमारा arbitrary था, ठीक है, वो एक चॉइस, एक random choice. so जब हम arbitrariness के बारे में बात करते हैं तो that is what? that is a state, right? arbitrariness is a state, right, of being what? random choice, ठीक है। या ऑटोक्रेसी, हमने देखा था कि ऑटोक्रेटिकली एक एडवर्ब था, यहां पर हमने उसे नाउन बना दिया, दैट इज ऑटोक्रेसी। ओके, नाउ आर्बिट्रेट, नाउ वी टॉक अबाउट आर्बिट्रेट। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखे इसके नाउन्स, एडवर्ब्स, है ना। अब हम इसे बात करते हैं प्रैक्टिस में लाने की, दैट मीन्स वर्क, that is a verb. so reach to an authoritative judgment to settling a dispute. so when you know arbitration is done, so that is called arbitrate. arbitrate से ही बना arbitration, है ना। so reach to an authoritative judgment or settling a dispute. for example, the judge arbitrated, okay, the problem यानी or the dispute, यानी क्या हुआ कि एक फाइनल जजमेंट पे वो जो आर्बिट्रेटर है वो पहुंच गया टू डू व्हाट? डिस्प्यूट को उसने फिर क्या कर दिया? सेटल कर दिया, ठीक है। डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, ठीक है, वो एक अथॉरिटेटिव जजमेंट पर पहुंचा, विच इज नोन एज, वो जो क्रिया है, वो जो काम है, दैट इज कॉल्ड एज आर्बिट्रेट। ओके, नाउ आर्बिट्रेस, अभी आपने क्या देखा था? आर्बिटर आपने देखा था, है ना। पहले आपने एक वर्ड देखा आर्बिटर, a person who solves disputes and has authority in a matter. तो बस this is used for male, जहां पर फीमेल हो जाती है, so that is called arbitress, ठीक है। for example master and mistress, ठीक है। so arbitress, so a female arbiter, okay. okay, आपका एक लास्ट रूट वर्ड यहां पर आता है क्लेमिंग, राइट। क्लेमिंग याद होगा सेशन के बिगिनिंग में आई इंट्रोड्यूस you with the word that's called clement, right? तो बस यही से वो है, आप देख लीजिए अब उसका क्या मीनिंग हो सकता है, ठीक है। so clemming, so जहां पर भी आपको एक वर्ड मिलेगा clemming, right? so that is related to mercy, ओके, और माइल्डनेस और कामनेस, ठीक है। मर्सी यानी दया, ठीक है। माइल्डनेस जो क्या है? जो ज्यादा सिवियर नहीं है, जो थोड़ी सी कम है। एंड देन कामनेस यानी स्थिर, है ना। सो क्लेमेंसी, पहला वर्ड पढ़ते हैं रूट वर्ड से, विच इज क्लेमेंसी। सो इट इज द नाउन विच इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग मर्सीफुल और लीनियंट, ठीक है। यानी एक ऐसा इंसान जो स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है, जो स्ट्रिक्ट नहीं है और जो क्या है? मर्सीफुल है, दयावान है, जो माफ करता है, जिसके दिल में क्या है? दया है, प्यार है, ठीक है। और वो क्या है? लीनियंट है, ठीक है, वो स्ट्रिक्ट नहीं है। that is called what? clemency. that quality is called clemency. बस अब इसका आप क्या बना दीजिए? एडजेक्टिव बना दीजिए। सो क्योंकि आपको पता है कि मर्सीफुल और लीनियंट जो क्वालिटी होती है, दैट्स कॉल्ड क्लेमेंसी। सो बस एक इंसान जिसमें वो क्वालिटी है उसे हम क्या कहेंगे? क्लेमेंट, right? so in the beginning when I said God is clement, so that means what? because God is merciful, right? but another meaning for clement can be mild weather, right? so clement एक mild weather यानी जो ज्यादा ना तो गर्म है ना वो ठंडा है, ठीक है, ठीक ठाक है, ठीक है, ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं है, ठीक है। so that is clement. now inclemency, okay, it is a noun, quality of being harsh, strict or rough, ठीक है। इंग्लिश में आप जरूर एक ध्यान रखिएगा कि जो ऑपोजिट वर्ड्स हैं वो जहां पर इन होता है तो वो वहां से भी शुरू हो सकते हैं, जैसे हमने देखा था इन कल्पेबल एंड एक्सकल्पेट, राइट। सो इनकल्पेट एंड एक्सकल्पेट पर, ठीक है। सो इनक्लेमेंसी, ठीक है, जो क्लेमेंसी अगर क्या है? क्वालिटी है मर्सीफुल होने की, तो वहीं इनक्लेमेंसी क्या हो जाएगी? एक उसका उल्टा, है ना। सो इनक्लेमेंसी इज क्वालिटी ऑफ बीइंग हार्श, स्ट्रिक्ट और रफ, ठीक है। नाउ inclement, so just like clement, okay, we had what?
द क्लेमेंट, विच मेंट व्हाट, समवन हु इज मर्सीफुल। सो बस उसका क्या है, ऑपोजिट है रफ और हार्श टेम्पर। टेम्पर मीन्स व्हाट, अ क्वालिटी टू कंट्रोल योर anger or your emotions, ठीक है। So someone who has a harsh temper, यानी someone who is angry, right? या फिर जैसे हमने देखा था mild weather था, तो वैसे यहाँ पर unpleasant weather because we have the in, right? So these are the antonyms. सो थैंक यू सो मच ऑल, ठीक है। आज के लिए ये रूट वर्ड्स हमने देखे थे। नेक्स्ट टाइम ओके, इफ वी कम इफ वी कंडक्ट अ सेशन ऑन वोकैबुलरी, तो आगे भी हम और रूट वर्ड्स लेकर आपके पास आएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। I hope you found this session productive and you learned new words.